ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਪ੍ਰਭ ਦਾਤੂ ਦਾਤਾਰ ਪਰਿਓ ਜਾਚਕ ਇੱਕ ਸ਼ਰਨ। ਮਿਲੇ ਦਾਨ ਸੰਤ ਰੈਨ ਜੇ ਲਗ ਭੋਜਲ ਧਰਨਾ। ਬਿਨਤ ਕਰੋ ਅਰਦਾਸ ਸੁਨੋ ਜੇ ਠਾਕੁਰ ਭਾਵੈ। ਦੇਵ ਦਰਸ ਮਨ ਚਾਓ ਭਗਤ ਇਹ ਮਨ ਠਹਿਰਾਵੇ। ਭਲੇ ਹੋ ਚਿਰਾਗ ਅੰਧਿਆਰ ਮੈਂ ਸਭ ਕਲ ਉਜਰੀ ਇੱਕ ਨਾਮ ਧਰਮ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਗਲ ਹਰ ਭਵਨ ਮੈਂ ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਗਲ ਹਰ ਭਵਨ ਮੈਂ ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ। ਨਿਰਮਲ ਨਾਮ ਸੁਦਾ ਭਰਪੂਰਨ ਸ਼ਬਦ ਤਰੰਗ। ਪ੍ਰਗਟਤ ਦਿਨ ਆਗਰ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਅਥਾ ਅਤ ਬੜ। ਸੁਭਰ ਸਦਾ ਸਭ ਵਿਦਰਤ ਨਗਰ। ਸੰਤ ਮਰਾਨ ਕਰੇ ਕੰਤੂਹਲ ਤਿਨ ਜਮ ਤਰਾਸ ਮਿਟਿਓ ਦੁਖ ਕਾਗਰ। ਕਲ ਜੁਗ ਦੁਰਤ ਦੂਰ ਕਰਵੇ ਕੋ ਦਰਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਸਗਲ ਸੁਖ ਸਾਗਰ। ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ ਐਨੇ ਤੋ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਜਾਗਦੀ ਜੋਤ ਜ਼ਾਹਰਾ ਜ਼ਹੂਰ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ। ਸਰਵ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਜਬਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ। ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਤ ਪਾਏ। ਆਓ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਗਜਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਜਗ ਮੈਂ ਚਾਨਣ। ਚਾਨਣ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਿਆਖਿਆ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਸਰੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਦੀਵੇ ਜਗਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਕਦੇ ਕੈਰੋਸੀਨ ਆਇਲ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਦੀਵੇ ਜਗਾਉਂਦੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬਿਜਲੀ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਵਿਚ ਔਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਨਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਚਾਨਣ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਘਟੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਨਣ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਇਸੇ ਕਿਹਾ ਦੀਵਾ ਬਲੇ ਅੰਧੇਰਾ ਜਾਏ। ਦੀਵੇ ਦੇ ਜਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਧੇਰਾ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ।
ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੀਵਾ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੰਤਰਮੁਖੀ। ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਦੀਵੇ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਅੰਧੇਰਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ, ਬਿਨ ਤੇਲ ਦੀਵਾ ਕਿਉਂ ਜਲੈ, ਬਿਨ ਤੇਲ ਦੀਵਾ ਕਿਉਂ ਜਲੈ, ਕਰ ਚਾਨਣ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ। ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਬਿਨਾਂ ਤੇਲ ਤੋਂ ਦੀਵਾ ਨਹੀਂ ਜਗ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਚਾਨਣ ਕਰੋ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੱਕ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚਾਨਣ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੱਥਰ ਤੇ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ, ਰੁਮਾਲੇ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਚੰਦੋਆ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਸ ਅੰਦਰਲੇ ਚਾਨਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅਵਿਸਲੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਪੋਥੀ ਪੁਰਾਣ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਪਾਉ ਵੱਟੀ ਇਤ ਤਨ ਪਾਈ ਹੈ, ਸੱਚ ਬੂਝਣ ਆਣ ਜਲਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਲ ਦੀਵਾ ਇਉਂ ਜਲਾ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪੋਥੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੀਕਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੀਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਪੁਰਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ। ਪੋਥੀ ਪੁਰਾਣ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਈ। ਪਾਉ ਵੱਟੀ ਇਤ ਤਨ ਪਾਈ ਹੈ, ਦੀਵਾ ਤੇ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੱਤੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੋਥੀ ਪੁਰਾਣ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਪਾਉ ਵੱਟੀ ਇਤ ਤਨ ਪਾਈ ਹੈ, ਸੱਚ ਬੂਝਣ ਆਣ ਜਲਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਲ ਦੀਵਾ ਇਉਂ ਜਲੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਧੇਰੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ। ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝੀਏ। ਹੁਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੋਈ 35 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੋਈ 30 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਤੀਕਰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਪਾਸਾ ਸਾਡਾ ਹਾਲੀ ਬਹੁਤ ਢਿੱਲਾ। ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ। ਅੱਜ ਵੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਨਾਇਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕੀਤਾ। 15 ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਤਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਸਪਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬਦਲਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ।
फिर गुरु घर के निकट वर्तियां की बाणी भी दर्ज की। ये बड़ा तुसी परोपकार किया, पर किरपा करके सानू ये भी दसो कि असीं इहदे तो लाह किवें लै सकां। ते गुरु अर्जन देव पातशाह ने कृपा की, कहन लगे भाई इस तो लाह लैण दे 3 तरीके हैं। जिवें हुणे सिंह साहिब कह रहे सन, सिख रहत मर्यादा विच भी लिखिया कि हर गुरसिख नूं अपना सहज पाठ जारी रखना चाहिए। सहज पाठ का मतलब ही यह है कि सहजे सहजे समझ समझ के गुरु नाल गल्लां करके मैं तुहाडी सेवा विच बोल रहा हूँ। जे मैं काली काली बोलना तुसीं आखोगे तुहानूं समझ ही नहीं आई, इसलिए मैं सहजे सहजे बोलना, तुहानूं हर अखर समझ विच आ जाए। तो गुरु अर्जन देव पातशाह ने अपने मुखारबिंद तो कृपा की थी। ये 3 तरीके उस वेले तो प्रमाणिक हैं। गुरु पंथ के अंदर, गुरु संगत के अंदर ये 3 तरीके प्रमाणिक हैं। सब तो पहला तरीका है एक मन एक चित्त होके एकांत विच बैठ बाणी का पाठ करना, जिन्हों आप नितनेम करना भी कह सकते। नितनेम किसी का वध हो सकता है, किसी का घट हो सकता, वो वखरी गल। पर जो विधान है, जो मर्यादा है, उसके मुताबिक एकांत विच बैठ के एक मन एक चित्त होके पाठ करो। ये पहला तरीका। दूजा तरीका है संगत विच आके बाणी का कीर्तन सुनो। कीर्तन नूं निर्मोलक हीरा कहा। कीर्तन दियां उन्हां बिगड़ियां होइयां परिस्थितियां बारे पंथ जाग विच आया। कीर्तनियां नूं भी बेनती है कि उस प्रथा नूं संभालण। पुरातन कीर्तनीय कीर्तन करते सन। मैनूं एक दफा याद है, लाहौर डेरा साहब भाई लाल जिहड़े भाई चांद दी अंश वंश विचों सन, उन्होंने छोटे भरा सन या कोई सन, मैनूं बहुता नहीं, पर उन्होंने 3.5 घंटे कीर्तन किया। उन्होंने कीर्तन की जिहड़ी परंपरा सी, जो मर्यादा सी, 3.5 घंटे उन्हें अख नहीं खोली। सामने बैठी संगत ने भी अख नहीं खोली। मतलब बाणी का ऐसा प्रवाह चल रहा सी। एक तो बाद दूजा प्रमाण, दूजे तो बाद तीजा प्रमाण। जिस टॉपिक नूं उन्होंने लिया उन्होंने बड़ी तसल्ली नाल निभाया। वाकई अज कीर्तन की जिहड़ी प्रथा विच बिगाड़ आया, असी क्योंकि कंट्रोल नहीं किया। कंट्रोल आम बंदा नहीं कर सकता। खैर, मैं इस टॉपिक से बहुता विस्तृत नहीं जानता। अशारे मात्र में कहना कि गुरु अर्जन देव पातशाह ने बाणी तो ज्ञान लैण लई दूजा तरीका कीर्तन दस्या, ते तीजा तरीका है बाणी की कथा विचार कर। हुण सिंह साहब ने 2 श्लोक पढ़े ने। 2 श्लोकां दीयां 2-2 पंक्तियां ने, पर कमाल है उन्होंने अंदर इन्ना डूंगा ज्ञान है कि जिमें समुद्र कुजे विच बंद कर दी। उन्होंने खोलने वास्ते विचार करनी बड़ी जरूरी है। तो ये 3 तरीके गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने दसे हैं। और उस समय तो अज तीकर सिख संगत विच ये 3 तरीके प्रमाणिक हैं। माई भाई इशनान करके पाठ करते हैं, फिर संगत विच आउंदे हैं, फिर बाणी का कीर्तन सुनते हैं, फिर बाणी की विचार भी सुनते हैं। संगत ने धन्नवाद किया, पातशाह तुसी बड़ी कृपा की। पहला बाणी का संग्रह किया, फिर सानू बाणी नाल जुड़न के तरीके भी दसे। एक काम होर करो, ये भी दसो कि किहड़े तरीके का कितना महात्म है, कितना लाभ है, कितना फल है।
क्योंकि हर व्यक्ति चाहता मैं उस तरीके नाल काम करा जिहदे नाल मैनूं लाभ ज़्यादा। गुरु अर्जन देव पातशाह ने कृपा की थी। ये गुरप्रताप सूरज ग्रंथ में बड़े विस्तार नाल लिखी। महाराज ने कहा जदों कोई गुरु का सिख माई पाई एकांत विच बैठ के एक मन एक चित होके पाठ करेगा, उहदा लाभ इतना जितना खूह दे पानी का। कहने लगे महाराज समझ नहीं आई। सतगुरु कहने लगे जिस तरह खेत नूं सींचण वास्ते खूह लाया जाता, पुरातन सनातन तरीका इहो ही सी कि खूह लाए जाते, पर खूह जिहड़ा ਉਹਦੀ ਸਮਰੱਥਾ बड़ी सीमित होती। वो अपने नेड़े वालियां खेतियां नूं ਸਿੰਜ सकता। एक खूह सारे पिंड दे खेतां नूं नहीं ਸਿੰਜ सकता। साडा कहण तो मतलब है जिहड़ा एक मन एक चित होके बाणी दा पाठ करेगा, बाणी तो मिलण वाली सिੱਖਿਆ उपदेश ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਟੁੰਬੇਗਾ। संगत ने कहा ठीक, हुण मेरे ख्याल तुहानूं भी समझ आ गई होगी। दूजा तरीका है बाणी नूं कीर्तन रूप उचारण करना ते सुनना। सतगुरु कहण लगे इहदा लाभ इतना है जितना मीह दे पानी का। जदों बरखा हुंदी है ਉਹਦੀ कोई हद नहीं होंदी, ਉਹਦੀ कोई सीमा नहीं होंदी। जिथे जिथे भी मीह पै जाए, जिन्हां जिन्हां दे कन्नां विच बाणी दा कीर्तन सुनाई देवे, उन्हां दे हिरदे नूं ठंड पैंदी। यह है मीह दा पानी। ते तीसरा तरीका है बाणी दी विचार करनी। इउं जाणो जिवें निम्मी निम्मी फुहार ला के मीह वसदा है, बहुता तेज नहीं होंदा, पर जिन्नियां बूंदां धरती ते पैंदियां ने धरती के सीने में धस जांदियां। जदों तुसीं एक मन एक चित होके बाणी दी विचार सुनोगे, फिर तुहानूं पता लगेगा कि इन्हां दो पंक्तियां दे अंदर गुरु महाराज ने कितनी बड़ी गल लिखी। आओ शुरू करिए। पहले श्लोक विच पातशाह फरमांदे ने, श्लोक महला पंजवां, अंतर चिंता नैनी सुखी मूल ना उतरै भुख। मैं पढ़िया तुसी सुनिया, अखरी अर्थ तुहानूं समझ आ गया। पातशाह कहंदे जिन्हां दे अंदर हिरदे विच चिंता है, बेभरोसगी है, चिंता बड़ी खतरनाक। चिंता नूं सियाणे लोगों ने चिखा बराबर किया। डॉक्टर जसवंत सिंह जी नेकी ने एक पुस्तक लिखी है, उसका नाम है चिंता रोग। उन्होंने उसके आरंभ विच एक शेर लिखे, यके मुर्ग दीदम न पाओ न पर, न आशिक में मादर न पुछते पिदर, न भर आसमानों न जेरे जमी, हमेशा खुर्द गोश्ते आदम। क्योंकि हुण उर्दू असी नहीं पढ़ते, साडे विच उर्दू पढ़न वाले घट गए, फारसी तो बिल्कुल ही भुल गए। नाल ही डॉक्टर साहब ने उहदा उलथा कर दिता। कहंदे डिठा एक जनौर मैं जिसते पैर न पर, मां प्यो किसे न जमिया ना कोई उसका घर, ना रहिंदा विच जमीन दे ना रहिंदा आसमान, खांदा मास मनुख दा इहो उसकी मान। उन्होंने चिंता रोग की व्याख्या की थी। जिदे अंदर चिंता है, हाय मैं किवें गुजारा करांगा, हाय मैनूं किवें पैसे मिलणगे, हाय बस जिदे अंदर चिंता। ये चिंता चिखा बराबर है। गुरु नानक सच्चे पातशाह ने सब तो पहला ये पढ़ाया, नानक चिंता मत करो, नानक चिंता मत करो।
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ, ਜਿਹੜਾ ਮਤ ਅੱਖਰ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ 3 ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਤ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਮਤ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਮਤ ਤੱਤਾ ਮੁਕਤਾ। ਉਚਾਰਨ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਮਤ ਹੈ, ਅਰਥ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਤ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਵਾਲਾ ਉਹ ਹੈ ਅਕਲ ਬੁੱਧੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਤ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਵਾਲਾ ਉਹ ਹੈ ਮਤਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਤ ਤੱਤਾ ਮੁਕਤਾ ਉਹ ਮਤ ਮਤਾਂਤਰਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਿਆਰਿਓ ਨਾਨਕ ਚਿੰਤਾ ਮਤ ਕਰੋ, ਨਾਨਕ ਚਿੰਤਾ ਮਤ ਕਰੋ। चिंता तिसही है, चिंता तिसही है। जल में जंत उपायन, जल में जंत उपायन। जना भी रोजी दे, जना भी रोजी दे। आखिर जिन्हां दे अंदर चिंता है, नैनी सुखी, बाहरों बाहरों इन्हां नेत्रां नूं सुखी नजर आते, पर मैं ते तजर्बा कीता। बाबा नानक जी ने मेरे तो पहला ये गल दृढ़ करा दी, नानक दुखिया सब संसार। बस उतों उतों पोचवें पाचवें कपड़े, सोने कपड़े देख के न सुट, बाहरों सुखी लगते पर माड़ा जा फूलोगे। गुरु अर्जुन देव पातशाह कहते, मैं इसे वास्ते किसी बंदे नाल गल ही नहीं करता। क्यों? जिस मानुक पे करो बेनती, सो अपने दुख भरिया। माड़ा जा छेड़ के वेखो किसे, चिंता ही चिंता, दुख ही दुख, पीड़ा ही पीड़ा। मूल ना उतरे भुख, मूल का मतलब मुढ़ों ही उन्हां दी भुख कदे मुकदी नहीं, उन्हां दे अंदर भुख कदे मुकदी नहीं। तृष्णा बिरले ही की बुझी है, कोट जोरे लाख करोरे मन ना हो रे, परे परे ही को लुझी है। राजा आउंदा ही नहीं। ये पहली पंक्ति है। जेड़े बंदे बाहरों नजर आंदा कि बड़े सुखी ने, पर अंदर चिंता है ते पदार्थां दी भुख, तन दी भुख लगी हुई है। मारे फिर किवें करिए ते सानू हैगी, असीं भी उहदे विच शामिल हां। फिर महाराज अगली पंक्ति कहते ने, नानक सच्चे नाम बिन, नानक सच्चे नाम बिन। किसै न लथो दुख, किसै न लथो दुख। पंक्तियां दो हैं, जिवें सिंह साहब कह रहे सन, असल विच ये रिड़कना है। रिड़के तो बिना मक्खन नहीं निकलता, विचारे तो बिना समझ नहीं आती। भगत कबीर जी ने ताई किया, प्यारे हो ये फॉर्मेलिटी ना करो, हर का बिलोवना, बिलोवो मेरे भाई, सहज बिलोवो जैसे तत न जाए। इको ही श्लोक विचार ली, इको ही श्लोक नूं चंगी तरह रिड़क लईए, समझ आ जाएगी। भाई इन्हां दुनियावी पदार्थां दे नाल कदे किसी की चिंता नहीं मुकी, कदे किसी की भुख नहीं लथी। इत्थे बड़े तो बड़े अमीर लोग पे, बड़े तो बड़े कारोबारी पे, किसी नूं पुछ के देखो। बादशाह ने फैसला किया, तृष्णा बुझै हर के नाम, तृष्णा बुझै
हर के नाम। ਤੁਸੀਂ ਬੂਝਾ ਬੋਲਦੇ, ਬੂਝਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬੁਝਾ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਕੜਾਂ ਪਾਈ ਜਾਓ, ਅੱਗ ਵਧੇਗੀ ਜਾਂ ਘਟੇਗੀ? ਅੱਗ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੋਰ ਲੱਕੜਾਂ ਨਹੀਂ ਫੂਕਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਈ ਜਾਓ। ਭਾਈ ਅੱਗ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਬੁਝੇਗੀ ਜੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਪਵੇਗਾ। तो गुरु पातशाह कहने प्यारे हो, तृष्णा बुझाए हर के नाम, तृष्णा बुझाए हर के नाम। महासंतोख होवे गुर बचनी, महासंतोख होवे गुर बचनी। प्रभ स्यों लागे पूरन ध्यान, प्रभ स्यों लागे पूरन ध्यान। पढ़दे रोज साच नाम आधार मेरा, जिन भुखा सब बुआई। कर शांत सुखमन आए वस्या, जिन इच्छा सब बुझाई। तो पहली श्लोक दियां दो पंक्तियां दे अंदर गुरु महाराज ने बड़ी डूंगी गल समझाई। इस शीशे विचों असीं अपना आप देखिए भी साडी की हालत है। दिने भी चिंता, राती भी चिंता, हर वेले चिंता। पढ़ते जरूर हाँ कि सैल पत्थर में जन तो पाए, ताका रिज़्क आके कर धरिया। फिर गल समझ किवें आवेगी? मेरे माधो जी सत संगत मिले सो तरिया, मेरे माधो जी सत संगत मिले सो तरिया। गुर प्रसाद परम पद पाया, गुर प्रसाद परम पद पाए। सूके काष्ठ हरेया, सूके काष्ठ हरेया। सत्संगत विच आवांगे, गुरबाणी नूं विचारांगे, गुरु की कृपा हो जाए। जिस दिन गुरु की कृपा हो गई, परम पद पाया। परम पद की है? उची पदवी, उची अवस्था हो जाए। कोई उन्होंने ज्ञान कहता है, कोई उन्होंने 10वां द्वार खुलना कहता, जो मर्जी कहे, पर गुरबाणी ने इस तरह की उलझन विच नहीं पाया। सीधा जिहा राह दस्या भाई, पहला गुरु की बाणी सुनो फिर मनो, ते मन के पंच परवान पंच प्रधान, पंचे पावें दरगाह। हुण असीं पढ़ते सुनते जरूर हाँ, पर विचार नहीं करते। गुरु नानक पातशाह जी की पंजवीं जोत गुरु अर्जुन देव जी फरमाते ने, भाई ये गल पल्ले बन लो। अंतर चिंता नैनी सुखी, मूल न उतरे भुख, नानक सच्चे नाम बिन किसे न नथो दुख। इहदा मतलब एवें नहीं गुरु अर्जुन देव जी ने कहा सर्व रोग को औखद नाम, कल्याण रूप मंगल गुण गाम। ये जिहड़े गुरु के वचन ने ना, ये साडे लई अंधेरे विच चानण दिंदे। रोज पढ़ते हैं ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन परगा। ये पहला श्लोक है। हुण दूजे श्लोक विच पंजवें पातशाह फरमांदे ने, मुठड़े से ही साथ जिनी सच ना लद्या। मुठड़े का मतलब है ठगे गए, लुटे गए, उन्होंने अपना जीवन बर्बाद कर लिया।
कई काफले, साथ का मतलब कई लोग आए, इन्नी लोहनी देखदियां खेती चल गई। बड़े बड़े धनवान आए। रोज तुसी सवैये पढ़ते हो, माते मतंग जरे जल संग अनूप उतंग सुरंग सवारे, कोट तुरंग कुरंग से कूदत, पौन के गौन को जात निवारे, भारी बुझान के भू भली बिद, न्यावत शीश न जात विचारे, एते वह तो कहाँ वह भूपत, अंत को नंगे ही। इथे कई आए तो कई लुटे गए, कई रगड़े गए, कई अपना जीवन बर्बाद कर गए। मुठड़े से ही साथ जिनी सच न लद्या। गुरु नानक पातशाह सियालकोट गए, उत्थे बाबे दी बेर है। कहते हैं उत्थे एक पीर सी जिसने किसी को कोई वर दिता होना, किसी को पुत्र हो गया, उन्हें कहा पुत्र मैनू दे दे। उन्हें आख्या महाराज बड़ी मुश्किल नाल ते मेरे घर पुत्र होया, मैं तुहानू दे दें। वो गुस्से हो गया, उन्हें चलीसा कटिया, कहना मैं सारा सियालकोट तबाह कर दूं। मेरे बाबे कोलों ये गल चेरी नहीं गई। हो सकता है किसी में इहो जी ताकत आ जाए, बड़िया ताकत ने नाम विच, पर वो इस वास्ते नहीं है कि लोगों को दुखी किया जाए। बाबा जी गए, साखी तुहानू सारी आती है। जदों नज़र की उस गुंबज वाल, तो वो चूने गच गुंबज कहते हैं, खखड़ी वांगू खड़ गया, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੇੜਾਂ आ गई, रोशनी अंदर गई, ਉਹਦਾ ध्यान उखड़ गया। कहता ये की ਬਣਿਆ? गल की गुरु नानक सच्चे पातशाह ने उसनू समझाया। आखण का नहीं जी, ये सारा सियालकोट झूठियां दा, बेईमाना दा। सतगुरु कहन लगे ऐसा नहीं हो सकता। मरदाने नू टका दे के भेजा, ते भाई मूले ने टके दे बदले कागज ते लिख दिता, मरना सच ते जिउना झूठ। जदों ये लैके आया तो वो पीर दे अगे रखिया, उन्होंने समझाया। कहने का मतलब जिन्होंने मौत नूं भुला दिता, जिन्होंने सच्चे दा सिमरन नहीं किया, इत्थे कई आए काफलियां दे काफले ते डुब गए, लुटे गए, ठगे गए, डुब गए। मुठड़े सही साथ जिनी सच न लद्या। जिन्होंने अपने जीवन में सच नूं प्राप्त नहीं किया, भाव सच्चे नाल नहीं जुड़े, सच्चे परमात्मा का सिमरन नहीं किया। गुरु नानक पातशाह सानू सिखाउंदे ने, भाई आए तो तुसी वणज कर लो, पर मेरी सलाह मनो, वणज करो वणजारे हो, वणज करो वणजारे हो। ये नहीं रोकया भी तुसी वणज ना करो, ये नहीं आख्या कि तुसी किरत ना करो, काम ना करो, करो जरूर करो, पर वणज करते हुए ये ध्यान रखो, वखर ले संभाल, वखर ले संभाल। सौदा लेना हो, बीबियां घमियार को जांदियां ने घड़ा लैन, 2 4 10 रुपए का घड़ा लेना, बल्ले 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 इन्नी टणका टणका के उन खड़का खड़का के वेखणगियां भी ये पक्का भी है कि नहीं। बस बाबा नानक जी कहते हैं मेरी सलाह मनो, आए हो तुसी वणज करन वास्ते, परमात्मा ने तुहानू ते मैनू श्वासां दी पूंजी दिती है। मैं तुहानू व्यापार करन तो नहीं रोकदा, पर सौदा लैण वेले ये परख कर लो कि ये वस्तु साडे नाल निभेगी कि नहीं। वणज करो वणजारे हो, वणज करो वणजारे हो।
वखर ले हो संभाल, वखर ले हो संभाल। तैसी वस्त विसाही है, तैसी वस्त विसाही है। वसाइया का मतलब है खरीदना करनी। केड़ी? जैसी निभ है नाल, जैसी निभ है नाल। वो वस्तु खरीदनी करिए जिहड़ी साडे नाल निभे। बस इत्थों विचार शुरू हो गए। विचारना पवेगा कि जो कुछ असीं इकट्ठा कर रहे हैं इन्हां विचों कोई चीज़ नाल चले। गुरु तेग बहादुर जी ते कहते जगत में झूठी देखी प्रीत। ये सब धंधा जिहड़ा झूठा है। जनन पिता लोक सुत बनता, कोई न किसकी तरया। इन्हां विचों कोई किसी का आसरा नहीं, किसी ने नाल नहीं जाना। रोज अखां नाल देखते हैं किन्ने लोग जा रहे हैं, किन्नियां नूं असीं अपने हत्थी विदा करके आउणे हां। कोई नाल कदे किसी दे गया? बस इन्नी गल गुरु पातशाह समझाउंदे ने, मुठड़े से ही साथ जिनी सच ना लतिया। जिन्हां ने जीवन विच सच्चे प्रभु का सिमरन नहीं किया वो ठगे गए, वो लुटे गए। नानक से शाबाश जिनी गुरमिल एक पछाणिया। नानक जी फरमाते हैं उन्होंने शाबाश है, उन्होंने तो मैं कुर्बान जाना जिन्हों ने गुरु नूं मिल के, गुरु की संगत करके एक परमात्मा की पछाण की थी। जिन्होंने समझ आ गई है कि एको है भाई एको है, एको है भाई एको है। साहिब मेरा एको है, साहिब मेरा एको है। तुझ बिन दूजा नाही कोई, तुझ बिन दूजा नाही कोई। तू करतार करें सो होए, तू करतार करें सो होए। तेरा जोर तेरी मन टेक, तेरा जोर तेरी मन टेक। सदा सदा जप नानक एक, सदा सदा जप नानक एक। इसीलिए गुरु नानक सच्चे पातशाह ने जोगियां नूं बड़ा लंबा उपदेश किया। आख्या जोग न खिंथा, जोग न डंडा, जोग न भस्म चढ़ाइया, जोग न मुंदी मूंड मंडाया, जोग न सिंगी वाई। अंजन माय निरंजन रही है, जोग जुगत इव पाई। अंजन कहते सुरमे, सुरमा कहते कालख नूं, कालख कहते माया नूं। माया विच रहिंदियां माया तो निर्लेप रहो। यदि जांच गुरु पातशाह दसदे। जिहड़ा अमृत वेले उठेगा, जिहड़ा इशनान करके प्रभु का सिमरन करेगा, उन्होंने ये माया कुछ नहीं आखदी। इसीलिए पातशाह कहते हैं कर इशनान सिमर प्रभ अपना, कर इशनान सिमर प्रभ अपना। मन तन भय अरोगा, मन तन भय अरोगा। कोट बिघन लाथे प्रभ शरणा,
कोट बिघन लाथे प्रभ शरण, प्रगटे भले संजोगा, प्रगटे भले संजोगा। कई गुरु प्यारे इस तरीके नूं बड़ा एप्रीशिएट करते हैं, पसंद करते हैं भी सानू बाणी की समझ आती। कईयां नूं किंतु परंतु भी हुंदा, पर मैनूं ये समझ आई है गुरबाणी नूं गुरबाणी द्वारा समझण नाल साडा रस्ता खुल जाता है, साडे सारे मुश्किलां विघनां दा नाश हो जाता है। गुरु साहब गारंटी देंदे ने, ओ गुर सिखो प्रभ बाणी शब्द सुपाख्या, प्रभ बाणी शब्द सुपाख्या। गावो सुनो पढ़ो नित भाई, गावो सुनो पढ़ो नित भाई। गुर पूरे तू राखिया, गुर पूरे तू राखिया। दो दो पंक्तियां दे श्लोक हैं। दास ने यत्न किया है कि इन्हों पढ़िया भी जाए, विचारिया भी जाए, तो अपने हिरदे की तख्ती ते लिख लो। फिर महाराज पौड़ी विच रस्ता दसते, कहने जिथे बैसन साध जन सो थान सुहंदा। अज इत्थे तुसी बैठे हो, इत्थे हर एक नूं प्रेरिया जाता है, भाई एक मन एक चित होके बैठो। साधु का मतलब की है? जिसने अपने मन वचन कर्म करके जिसने अपनिया इंद्रियां नूं काबू कर लिया, वो साध है। एक साध है ते दो संगती हैं। भाई गुरदास जी कहते एक साध दो संगती पंजी परमेश्वर। जिथे पंज हो जे जुड़ जान, वो जगह बड़ी सुंदर हो जाती। जिथे बैसन साध जन सो थान चौहंदा। वो करन की गल्लां ना करन, गप्पा ना मारन, एक दूजे की निंदिया चगली ना कर। ओए सेवन समर्थ अपना, ओए कूड़े का मुंह खुला है, ओए वो जेड़े साध जन सत्संगी ने, वो फिर उत्थे जुड़ के की कर सेवन समर्थ अपना। उस वाहगुरु अकाल पुरख नूं सिमरन कर। जो जो सिमरन करनगे, जिवें दवाई खाओ रोग घटेगा, इसी तरह ये दवाई है। बिन से सब मंदा, अज होर कल होर। उन्हां दे अंदरों जिहड़े मंदे विकार ने वो खत्म होने शुरू। इनू फूक मारन नाल किसी ने जे ठीक करना, किसी दे भोरे में जाके कन्ना च फूक मरवा के नहीं जे ठीक होना। ये प्रैक्टिकली जो तरीका महाराज कह रहे हैं, जिथे बैसन साध जन सो थान चौहंदा, ओए सेमन समर्थ अपना, बिन ते सब मंदा। क्यों? पतत उदाहरण पार ब्रह्म। वो जिहड़ा पार ब्रह्म है, वो पतता नूं उदाहरण वाला है। पतत किसनूं कहंदे ने? जिहड़ा टुटिया होया, जिवें दरख्त नालों पत्ता टुट जाए, उहनूं पतत होना कहंदे ने। जिहड़ा अपने राह तो भटक जाए, जिहड़ा अपने राह नूं छड्ड जाए, वो पतत है। सिੱਖੀ विच जिहड़ा पंज प्यारियां तो अमृत पान करके कुकरैत कर ले, उहनूं पतत कहंदे ने। पार ब्रह्म दा बिरद है पतत उदाहरण पार ब्रह्म, संत भेद कहांदा। ये गल गुरु साहब कहते मैं कला नहीं कह रहा, सारे संत भी कहते ने, वेद भी कहते ने। भगत वछल तेरा बिरद है, जुग जुग वर तंदा। इत्थे भगत के तत्ते नूं सियारी है। गुरबाणी विच भगत 3 रूपां विच आउंदा है। तत्ते नूं औंकड़ नाल एक भगत, औंकड़ हट जाए बहुते भगत, ते तत्ते नूं सियारी लग जाए भगती। भगत वछल तेरा बिरद है, ये वाहगुरू दा बिरद है।
ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਜਿਸ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਜਾਮਰ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਨਕਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੀ, ਪਤਤ ਉਦਾਹਰਨ ਬਿਰਧ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਬਿਰਧ ਹੈ ਜੁਗ ਜੁਗ ਵਰਤੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਜੁਗ ਦੇ ਗੱਗੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ, ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤ ਉਪਾਇਆ, ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਲਓ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਛੱਡੋ। ਕੀ ਮੰਗੋ? ਨਾਨਕ ਜਾਚੈ ਏਕ ਨਾਮ, ਨਾਨਕ ਜਾਚੈ ਏਕ ਨਾਮ। ਜਾਚੈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਾਚ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ। ਨਾਨਕ ਜੀ ਆਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ। ਨਾਨਕ ਜਾਚੈ ਏਕ ਨਾਮ, ਨਾਨਕ ਜਾਚੈ ਏਕ ਨਾਮ। ਮਨ ਤਨ ਭਾਵੰਦਾ, ਮਨ ਤਨ ਭਾਵੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ, ਮੇਰੇ ਤਨ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇਉਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਓਗੇ, ਇਹ ਘੜੀਆਂ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਘੜਾਈਆਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਓਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਨੰਦ ਰਹੇਗਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ 2 ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦਰਸਾਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੁਖ ਮਨੀ ਸੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ, ਸੁਖ ਮਨੀ ਸੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ। ਸੁਖ ਮਨੀ ਸੁਖ ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਕੈ ਮਨ ਬਿਸਰਾਮ, ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਕੈ ਮਨ ਬਿਸਰਾਮ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹੈ ਹੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਪੰਥਕ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਫਸ ਗਏ ਹੋ। ਇਸ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਟੁੱਟਣਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਓ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲੋ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਖਤਮ, ਤੇ ਘਰ ਵੀ ਸੁੱਖ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਸੁੱਖ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਘਰ ਸੁੱਖ ਵਸਿਆ ਬਾਹਰ ਸੁੱਖ ਪਾਇਆ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ। ਬੜਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਯੋਗ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਜੋ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ TV ਉੱਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ 11 ਤੋਂ 12 ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ, ਆਪ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਸਮਝ ਆਵੇ ਉਹ ਪੰਕਤੀ ਸਾਰੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ 9215032163 ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋਗੇ, ਦਾਸ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ